بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے. تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں پر بڑھ کر حاکم نہیں؟ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کے تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کے تو شان کریمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا
تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم اپنا 16واں روزہ اختیار کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اب تک جو 15 روزے گزرے ہیں، اللہ ان روزوں کو، ان عبادات کو قبول فرما، اور آج جو 16واں روزہ اختیار کریں گے یہاں سے لے کر آخری روزے تک اللہ ہمیں صبر و استقامت عطا فرما کہ اللہ کی عبادات ہم اس انداز سے کر سکیں جو اصل روح ہے رمضان کی، جو اصل روح ہے عبادت کی، جو ہے اصل میں روح رمضان۔ تو آئیے ناظرین، آج ابتدا میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان صاحب، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق یعنی اخلاق کے حوالے سے قرآن میں کئی بار اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کئی بار کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اخلاق ایسا ہونا چاہیے انسان کا کہ جب تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور اگر جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تم پر آنسو بہائیں۔ جب ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی آتی ہیں کہ صرف مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی جو اصل روح ہے، ایمان والا، مسلم ایمان والا، یہ ہونا ضروری ہے۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، لیکن ہم اس کے سارے واجبات، اللہ کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم سب کچھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی اخلاق ہے۔ اخلاق سے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہونا چاہیے، کسی بندوں کے ساتھ اخلاق اس خالق کے لیے کے سامنے بھی اچھا ہونا چاہیے، اخلاق بھی اور اخلاص بھی۔ جب بات کرتے ہیں ہم کسی عاشق رسول کی، تو پھر وہی سچا عاشق رسول ہوتا ہے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے اور کچھ نہ کچھ سیکھے رسول کی زندگی سے۔ اور آج کیونکہ 16 رمضان بھی ہے، اور آج ہمارے بھائی معروف قوال، معروف منقبت خان، معروف نعت خان، معروف سلام گزار شہید امجد صابری صاحب کی شہادت کا دن بھی ہے، اور یہاں میں بات کروں گا امجد بھائی کے اخلاق کی بھی، کہ وہ ایسا
आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसे आशिक रसूल थे कि उनका इखलाक ऐसा था कि जब जब कोई उनकी शहादत के बाद भी हमें मिला ना, तो हर शख्स ये कहता था कि अमजद मेरे बहुत करीब था। कोई कहता है अमजद मुझसे ज़्यादा प्यार करते, कहते अमजद साबरी साहब हमारे यहाँ आए तो वो तो ऐसे रहते थे जैसे उनका घर है। रमज़ान ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ होती थी, हर टीवी चैनल वाले ये कहते थे, हर होस्ट, हर मेज़बान ये कहता था यार अमजद का जैसा इखलाक था वैसे हमें कहीं नहीं मिला। तो ये कमाल आया कहाँ से? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जब वो कलाम पढ़ते थे तो कलाम के साथ उनका ये वाला अमल तो हमें नज़र आता था कि लोगों से हुस्न इखलाक के साथ पेश आना। तो आज हम इस मौजू पे भी बात करेंगे और अमजद भाई के हवाले से भी बात करेंगे और अमजद भाई की फ़ैमिली को भी हम लाइन अप करने की कोशिश करेंगे। और हमारी ट्रांसमिशन में जब अमजद भाई हुआ करते थे पहले, तो कौन कौन लोग हमारे साथ थे, उनमें से भी जो लोग हमारे साथ आ सकेंगे आज आएंगे। और इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि आज उलमा कराम से हम सीखते भी हैं कि हुस्न अखलाक आखिर है क्या, हमें क्या क्या सीखना चाहिए, दीन इस्लाम हमें क्या अहकामात देता है कि हम कैसे अपने अखलाक को बेहतर बना सकें। नाज़रीन मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए बारान रहमत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया हम उनको बताते चलें कि आज अब ये सेगमेंट आया है अंदाज़े बयान, जिसके अंदर तकरीरी मुकाबला होगा। जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से मुकर्रिरीन हमारे पास आते हैं। जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन जो नौजवानों में कलम दोस्ती, किताब दोस्ती को उजागर करता है। हम इससे पहले कि अपने मुकर्रिरीन का तारुफ कि जिनको आप हमारी ट्रांसमिशन में देखते हैं और हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाते हैं, मौलाना आबिद रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मौलाना जवाद आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप दोनों हजरात खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। किबला ऐसा है कि हम तकरीरी मुकाबला करते हैं और ज़ाहिर है आप लोगों से भी इसकी राय हम लेंगे और आपकी राय हमारे लिए काबिल सताइश है, काबिल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तारुफ़ कराऊँ और उन्वान आपको बता दूँ ताकि आपके अज़हान में भी रहे कि तकरीरी मुकाबला जब करने बच्चे आएंगे तो उनका उन्वान क्या है। नाज़रीन आज का उन्वान है, आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है। आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है। हमारे पहले हमारी दो मुकर्ररा हैं और बहुत छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं। मैं तारुफ़ कराऊँगा। पहली मुकर्ररा हमारी हैं साक्षी कुमारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप तो इतनी छोटी सी हैं, कर लेंगी तकरीर? जी। पक्की बात है? घबराएंगे तो नहीं? कॉन्फिडेंट है? पक्की बात? चलें इजाज़त दीजिए और शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, आज का मेरा मज़मून है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है। जी जनाब, ये सच है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है क्योंकि इसने तबाही को अपना मुकद्दर अपने हाथों से बनाया। आगे बढ़ते चलें तो जनाब सदर, जब मेरी समात में मासूम सी ज़ैनब और रक्सार की चीखें सुनती हूँ तो मेरा दिल कह उठता है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है। कि जनाब सदर, कि जब कांच की बोतल में पड़ी शराब को शहद साबित होते हुए सुनती हूँ तो मेरा दिल कह उठता है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है। कि जनाब सदर, जब मेरे मुल्क की अदालत महबूबे वतन को सजाए मौत और गद्दारे वतन को बाइज्जत बरी करते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल कह उठता है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है। कि जब आज की बेटी आने वाले कल की माँ बनेगी और वही टिकटॉक की धुनों पर नाचते हुए नजर आती है तो मुझे कहना पड़ता है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है। कि जनाब सदर, जब डॉक्टर महिसा खुद कोरोना के हाथों बेबसी की मौत मारी गई है तो मुझे कहना पड़ता है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़न है। और फिर मैं रो रो कर यही तराफ करती हूँ कि तुम्हें जो चाहिए तुम उसे खरीद लो, कि तुम्हें जो चाहिए तुम उसे खरीद लो। कि इंसान देखो कि तुम कितने गिर चुके हो, इंसान देखो कि तुम कितने गिर चुके हो।
जनाब सदर, जब बड़ी ताकतें छोटी ताकतों को कुचलना चाहती हैं, कि जब इंसाफ ये हो कि कांटों की सजा फूलों की दी जाए, कि जब कश्मीर की वादियों में खून की नदियां बहने लगें, कि जब मक्का जैसी जमीन पर इश्क और इशरत का जश्न मनाया जाए, कि जहाँ भूख और गुर्बत से मजबूर होकर इस्लामी रियासत में हमें खुदकुशी जैसी मौत अपने गले लगानी पड़ जाए, तो मुझे ये कहना पड़ता है और मैं चीख चीख कर यही कहूंगी कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है, कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है। जनाब सदर, कुछ कहती चलूं तो ये इंसान वही ना जो दूध के साथ केमिकलों के साथ मिलावट करता था, ये इंसान वही ना जो माँ बाप के कंधों पर चाकू मारता था, ये इंसान वही ना जो माँ के दिल के टुकड़े के बेटे को गोलियों से छलनी कर दिया जाता था। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी से और सर झुकाते हुए कहना पड़ता है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है, कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साक्षी कुमारी साहिबा। अब मेरी दरख्वास्त है दूसरी मुकर्ररा से आमना रियाज कोराई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, आपकी भी तैयारी पूरी है? जी। घबराएंगी तो नहीं? नहीं। ठीक है, आपका टॉपिक है आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है। बिस्मिल्लाह। तमाम तारीफें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मेरी तकरीर का उन्वान है आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है। सदर आली वक़ार, हमें हमेशा बताया जाता है कि इंसान ने ये ऐजाद किया, इंसान ने वो ऐजाद किया। जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया की सारी दवाएं एक जगह जमा की जाएं और सिर्फ कराची शहर की पूरी आबादी बीमार पड़ जाए तो दुनिया की अद्वियात तो कम पड़ जाएंगी, मगर बीमारों का इलाज मुमकिन न होगा। और वहीं दुनिया के सारे एटमी हथियार एक जगह जमा किए जाएं और इन हथियारों से 3 बार दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाए, तब भी कायनात खत्म हो जाएगी, मगर हथियार बच जाएंगे। जो इंसान जान बचाने के लिए अद्वियात से ज्यादा जान लेने के लिए हथियार बना रहा हो, तो फिर इस बात में क्या शक है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है। सदर अली वक़ार, यही वो इंसान है जिसके लिए कहा जाता था कि इंसान की अजमत को तराजू में ना तोलो। इंसान तो हर दौर में अनमोल रहा है, लेकिन सदर अली वक़ार अफसोस, सब अफसोस कि उसी इंसान ने आज हया बेच दी, वफा बेच दी, अना बेच दी, अखलाक का सौदा किया, ज़मीर को मार डाला। कल का टीपू सुल्तान नाच का सुल्तान राही है, कल तक जो इकबाल का शाहीन पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करता था, वो आज मुसरत शाहीन का रूप लेकर सिनेमा स्क्रीन पर जलवा कर हुआ। तो मेरी ज़बान ये बेख्तियार पुकार उठती है कि आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है। सदर अली वक़ार, यही वो इंसान है जो कल हमदर्द था आज बेदर्द बन गया, जो हबीब था वो रकीब हुआ, जो वाकिल था वो जाहिल हुआ, जो हक था वो बातिल हुआ, जो मुहाफिज था वो कातिल हुआ, जो फूल था वो खार बना, जो जीत था वो हार बना, जो मरहम था वो जख्म बना। जी हाँ सदर अली वक़ार, जिस इंसान ने गिरतों को सहारा देना था, वो इंसान आज गिरतों को एक और धक्का देता है। जिस इंसान का ईमान था नेकी कर दरिया में डाल, वो आज नेकी करने वाले को दरिया में डाल देता है। जिस इंसान ने यतीमों को दस्ते शफ़क़त और मेहरबानी बख्शना था, वो आज यतीमों के ही हक खा जाता है। जिस इंसान ने इंसान की इंसानियत का बाब लिखना था, वो आज हैवान की हैवानियत का दर्स देता है। वो इंसान जो कल तक अशरफुल मखलूकात था, आज बाइस रुसवाई मखलूकात है। जो कल तक इंसानियत की आला मेराज पे था, वो आज पाताल में गिरा हुआ है। जो कल तक इंसानियत की आला मेराज पे था, वो आज पाताल में गिरा हुआ है। जो कल तक मसूद मलाइक था, वो आज मुनकरे हकाइक बन बैठा। जो कल तक नाइबे खुदा था, वो आज गासिब मखलूके खुदा बन बैठा। जो इंसाफ का आलमदार था, वो आज जुल्म और जबर का पैरोकार बन गया। जो फूलों का शहदाई था, वो खुदा आज कांटों का सौदाई बन गया। इंसाफ कभी ये था कि जंजीर हिला दी, सुल्तान ने लब्बैक की खुश हो के सदा दी। इस दौर का दस्तूरे चमन और ही कुछ है, कांटों ने किया जुर्म तो फूलों को सजा दी, कांटों ने किया जुर्म तो फूलों को सजा दी। आज का इंसान तबाही की तरफ गामज़िन है। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों मुकर्ररा जो हैं, आमना रियाज कुरैशी साहिबा आप भी आइए और साक्षी कुमारी साहिबा आप दोनों आइए। माशाअल्लाह आप दोनों हैदराबाद से तशरीफ़ लाई हैं, तो सफ़र खैरियत से रहा आपका? माशाअल्लाह थकन तो नहीं हुई? कॉन्फिडेंट थी? किसी चीज़ की कमी आपको तो नहीं महसूस हुई है? प्यार भी मिला? लेकिन देखिए अब जो फैसला होगा आप दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो विनर होगा, और मैं चाहूँगा कि आबिद रिजवी साहब और मौलाना जवाद आबिदी साहब दोनों ज़रा अपनी अपनी राय का इजहार फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों बच्चों ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में और बड़े बेहतरीन दलाइल के साथ अपनी तकरीर की, और मैं ये थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया था कि वाकई आज का इंसान तबाही के दाने पर, तबाही की जानिब गामज़न। बड़ी अच्छी कोशिश थी दोनों को, और इस स्टेज पर आकर इनका खड़ा होना ही इनकी जीत है, इनकी फ़तह है। और उसके बाद दोनों में यकीनन बस दोनों मेरी नज़र में बराबर हैं, मैं किसी को तरजीह नहीं दे पाऊँगा दूसरे। अच्छा ठीक, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्वान अव्वली के तौर पे तो दोनों ने ही बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन चंद चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव कर लें बहुत अच्छा हो जाएगा। बाज़ औक़ात बोलते हुए किसी अल्फाज को बहुत स्लोली इसको ये लोग कॉल कर रही थी, जैसे सदर आली वक़ार बहुत आहिस्ता बोल रही थी, इसको लाउड ही बोलें जैसे बोलती हैं। और एक लफ्ज़ बार बार थोड़ा सा वो समझने में हो रहा था, गामज़न को गामज़न निकल रहा था, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। ये किन की बात कर रहे हैं आप? ये दोनों की हो रही है, तकरीबन बात दोनों में हो रही है। लेकिन उसके बाद आमना ने जो कहा वो यकीनन अपने एज के लिहाज से भी उसमें मैच्योरनेस और वो अपने लेवल पर आमना ने बहरहाल साक्षी से अच्छा किया, लेकिन साक्षी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, और मज़ीद ये कोशिश करें, मेहनत करें ताकि नेक्स्ट टाइम ये विनर भी हो इंशाअल्लाह। अभी आमना का कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपके जो भी आप जो विनर्स होंगे गिफ्ट हैम्पर्स तो आपको सबकी तरफ से जाएंगे। हमारे साथ ताउन किया है रूह अफ़ज़ा ने। रूह अफ़ज़ा ज़ाहिर है जिस्म की और रूह की ग़िज़ा की बात जहाँ तक है, और जहाँ रूह रमज़ान की हम बात करते हैं कि रमज़ान की असल रूह क्या है, इबादत। इसी तरह रूह को जिस्मानी तौर पर अगर तवानाई मिलती है, यानी एक तो इबादत से तो मिलती है, लेकिन खाने पीने से अगर मिलती है तो रूह अफ़ज़ा से हमारी रूह को बड़ा सुकून मिलता है। और इसके साथ साथ माज़ी की तरफ से बहुत बेहतरीन ब्रांड है, इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे, और हमारी कराची की शान पिज़्ज़ा स्पाइस एंड फूड्स की तरफ से भी आपको गिफ्ट जाएगा, और 9 ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से भी ताउन किया, जो हमारी कंपनी भी है, लेकिन हम एज़ आ मेज़बान मैं इस कंपनी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो ज़ियारत और हज उम्रा के हवाले से एक काबिल एतमाद नाम है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखिए पहले मैं आता हूँ साक्षी कुमारी साहिबा की तरफ। आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था, कंटेंट भी अच्छा था, और जितनी आपकी एज है उस हिसाब से भी अच्छा था। ये नहीं कि हम आपकी एज कम है तो इसलिए आपको हौसला अफजाई करें, नहीं, आपका कंटेंट वाकई अच्छा था, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो मैं बताना बेहतर समझता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं अक्सर मुकर्रिरीन को बोलता हूँ कि आई कांटेक्ट जो आपका होता है वो आई कांटेक्ट होता है सदर आली वकार जो भी आपकी ट्रांसमिशन में बैठे होते हैं। अच्छा, जब आप सदर कह रही थी, जबकि तलफ़ुज़ में गलती आपकी ये थी कि आप सदर कह रही थी। लफ्ज़ होता है सदर, SADAR नहीं होता, SADR कर दें, सदर, दाल के साथ रे फौरन होता है, ठीक है, जैसे सब्र होता है, सदर, और सदर के साथ आली वकार ये लगता है इसके, ये आप नहीं बोल रही थी। अच्छा, दूसरी आपने ऐशो इशरत का जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहाँ ऐश क्लियर नहीं हुआ, इशो इशरत आपने बोल दिया था। ये सारी चीज़ें आप जब ये सोशल मीडिया पे अपलोड होंगी या जो आप खुद जब देखेंगे, अभी तो आप खैर ट्रांसमिशन में, तो आपको अंदाज़ा होगा जो मैंने क्या क्या कहा है। अच्छा, आपने कहा माँ के कलेजे के टुकड़े के बेटे, ऐसे कुछ आपने कहा था, जबकि होता है, अगर आप ये कहना चाह रही हैं तो आप ये कहेंगे कि माँ के कलेजे का जो टुकड़ा है बेटा, ये माँ के कलेजे के टुकड़े कर दिए। आपने दो चीज़ें एक साथ मिल रही, माँ के कलेजे के टुकड़े बेटे, ऐसे आपने कहा था। वो आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ज़ाहिर है अपनी गलतियों से इंसान बहुत कुछ सीखता है, और जहाँ आपकी बात थी आपका अंदाज़ बड़ा नेचुरल था, बहुत अच्छा था। अच्छा, अब मैं आता हूँ आमना रियाज कुरैशी साहिबा की तरफ। आपका भी आई कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम था, आपको कैमरे को नहीं देखना है। अगर आप अकेली तकरीर कर रही हैं, सिर्फ कैमरा है तो आप कैमरे से मुखातिब होंगी, लेकिन जो जिनको आप सुना रही हैं, जिनको आप कह रही हैं सदर आली वकार, तो उनकी तरफ आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। बेसिकली आप उनको कायल करना चाह रही हैं कि मेरा मौजू ये है और मैं अपनी करारदाद पेश कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, आपका तलफ़ुज़ जहाँ पर आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एजाद, जबकि लफ्ज़ है ईजाद। अगर मैं आपको रोमन में समझाऊँ तो EJAD, ईजाद।
اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ میں بتا دیا ظلم و جبر ہے، جیسے میں نے ان کو بتایا نا کہ صدر، ایسے جبر نہیں ہے لفظ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا فلو بہت اچھا تھا، آپ نے بولا بہت اچھے، دلائل آپ کے بہت مضبوط تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ساکشی کماری صاحبہ آپ کی تقریر اچھی نہیں تھی، بالکل تھی. میں آپ کو مثال دوں، اگر ہمارے پاس 2 لکیریں ہوں نا، قبلہ آپ کی اجازت چاہوں گا مثال دینے کے لیے، 2 لکیر ہوں، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ یہ لکیر جو ہے یہ چھوٹی ہو جائے، میں جیت جاؤں، تو اگر ہم یہ کرتے ہیں اس کی لکیر کو مٹا دیتے ہیں، یہ ہو جاتی ہے نیگیٹو بات. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنی لکیر کو بڑا کرنا چاہیے. اگر ایک شخص نے محنت کی تو میں اس کی یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا. میں آپ نے ایسا کیا نہیں، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں، آئندہ ایسے لوگ بہکاتے ہیں جب بھی کمپٹیشن میں جاتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی اچھا کرے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ ہاں اچھا کیا ہے. خود اپنا موازنہ کمپیریزن ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کی ٹانگ کھینچیں، ہمیں اپنی سپیڈ کو بڑھا دینا چاہیے، وہ دوسری لکیر خود ہی چھوٹی ہو جائے گی. تو آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا جب تک ہم نے آپ کی تقریر سنی. جو غلطیاں آپ نے بھی کی، غلطیاں انہوں نے بھی کی، لیکن جو چیز پازیٹیو تھی آپ نے بھی اچھی کی. لیکن انہوں نے جب تقریر کی تو کچھ زیادہ اچھے انداز سے کی، آپ سے بہتر انداز سے کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس چیز کو سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن یہاں آپ آئی ہیں، یا اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کا یہاں آنا، یہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن گفٹ ہم دونوں ہی کو دیں گے، آپ کی اجازت ہو تو یہی رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے کہ آمنہ ریاض کورائی صاحبہ آج کی فاتح ہیں، اور ساکشی کماری جو ہیں وہ آج کی فاتح نہیں ہے. لیکن آپ کو میں صرف آدھے سے 1 نمبر کا فرق دوں گا، کیونکہ آپ میں اتنی کمی نہیں تھی. بس فرق یہ ہوا ہے کہ آپ سے تھوڑی بہتر تقریر انہوں نے کر دی، آپ کی تقریر میں کوئی زیادہ کمی نہیں تھی. تو آپ کے روح افزا کا گفٹ ہیمپر جائے گا، ماس جی اور پیزا 971 سب کے گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پاکستان کا روشن مستقبل ہوں گے. ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے باران رحمت. آج کیونکہ قوالی بھی ہوگی، ہمارے ساتھ ذکی زمان تاجی صاحب بھی موجود ہیں، امجد صابری صاحب کی فیملی کو بھی ہم لائن اپ کریں گے، علماء کرام سے بھی گفتگو کریں گے، امجد صابری صاحب کی یاد کو تازہ کریں گے. میرا بھائی شہید امجد صابری، کیونکہ قرآن کی روح سے شہید کبھی مرتا نہیں، شہید زندہ ہے.